name is Dr. Connie Chung. I got to know Dream a Dream in 2016 when I visited India as part of the Harvard Graduate School of Education Global Education Innovation Initiative. Thought loudly. Okay. Should I start over? Okay. So we were doing research about how fast our world is changing and what it takes to support our young people to thrive in such a context. And our Indian partners had said that Dream a Dream was the organization that was doing the most amount of work and the highest quality of work in this area. So I got to meet Vishal Tareja, who is the co-founder of Dream a Dream, for the first time. And when I left Harvard in 2019, he invited me to come to Bangalore to visit with Dream a Dream and learn more about its programs. And when I met with young people who were graduates of Dream a Dream, and when I saw the programs that Dream a Dream was operating, I really wanted to capture the stories of the young people who were thriving in spite of their backgrounds and adversity. So we started the project in February of 2019, and last year we completed the book, which is the book that we wrote together. And the book features 20 stories of 20 young people who are graduates of Dream a Dream. So each chapter tells a story of individual graduates. It also highlights a particular aspect of Dream a Dream's program. And then through the 20 stories, I try to tell how Dream a Dream itself evolved as it listened to young people. So there are many, many programs all over the world who are doing incredible work with young people. But Dream a Dream is unique in that it started by listening to young people right from the beginning about how its programs should be shaped. And many of its graduates are currently on staff at Dream a Dream and are shaping and growing it. So in addition to being globally recognized for the content of their programming, there's a special story to be told about how it evolved as an organization that really listens to young people, and then shapes itself to meet the needs that young people say that they need. So the book tries its best to integrate the stories along with research that shows why it's effective according to research-based, evidence-based principles. And then again, it tells a story of the organization itself. So for me, it was an honor and a privilege to be able to not just tell the stories of the young people, but also the story of Dream a Dream. ओके। तो डॉक्टर कोनी के चुंग जिन्होंने किताब लिखी है व्हेन वी थ्राइव आवर वर्ल्ड थ्राइव्स, इस किताब के लिखने के पीछे जो उनका इंस्पिरेशन है, उनका जो आइडिया है, उसके बारे में ये बताती हैं कि जब ये ड्रीमर ड्रीम से 2019 में मिली, जब विशाल तलरेजा से इनका इंटरेक्शन हुआ, जो ड्रीमर ड्रीम के को फाउंडर हैं, तब इन्हें पता चला कि किस प्रकार से हम लोग यंग पीपल, युवाओं के साथ और बच्चों के साथ उनकी जर्नी, थ्रू आउट उनकी जर्नी हम काम कर रहे हैं। उनकी बाधाओं या चुनौतियों से पार पाने की जो क्षमता है, उसको डेवलप करने के लिए, और उनकी जो सीखने की नीड है। हम सभी चाहते हैं कि हमें सुना और समझा जाए, और हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं अपने जीवन में, अपने सीखने की प्रक्रिया में। तो इनका जो इंस्पिरेशन है किताब लिखने का, वो ये है कि इन्होंने उन चुनौतियों को देखा, उन बच्चों से मिली जो जिनकी स्टोरी इस किताब में है। तो किताब के बारे में ये कहना चाहते हैं कि इस किताब में 20 युवाओं की कहानियाँ हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है, अलग अलग प्रकार की बाधाओं से जूझते हुए, उनका सामना करते हुए, और उनको एक प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में, जो सीखने समझने की प्रक्रिया है, उसमें ड्रीमर ड्रीम द्वारा किस प्रकार से सहयोग दिया गया, और उनकी सफलता को इन्होंने करीब से देखा, और उस इंस्पिरेशन के साथ में इन्होंने किताब लिखी है। और इस किताब में उन सभी 20 युवाओं और बच्चों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से सामाजिक, चाहे वो सामाजिक भेदभाव हो, चाहे जेंडर हो, कास्ट हो, क्लास हो, हर प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। और उनकी पूरी लाइफ जर्नी है
जो इसमें रिफ्लेक्ट की गई है, ये सभी के लिए सीखने का विषय है कि हम सभी जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम किस बैकग्राउंड से हैं या हम क्या सीख लेकर आए हैं, लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें सहयोग मिलता है, अगर उसमें हम साथ में मिलके काम करते हैं, तो सभी हम थ्राइव कर सकते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है हम सभी की। मेनली किन लोगों के लिए लिखा गया है ये चीज़, मतलब किन मुद्दों को ज़्यादा उस पर रखा गया है? इसमें सामाजिक मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं हैं, ख़ास करके युवाओं और बच्चों के जीवन में बाधाएं आती हैं जब वो इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनके पास में जैसे प्रिविलेज नहीं होता। जैसे कोई बाधा है जिस तरह से? जैसे अगर कोई बहुत ही अधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं, या किसी को कास्ट या क्लास की वजह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनके पारिवारिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उन्हें सहयोग प्रदान नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से जब उस बैकग्राउंड में बच्चे रहते हैं और उस प्रक्रिया में उन्हें एक सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है जो एक्चुअली उन्हें चाहिए, जो उनकी नीड है, तो जब वो उन्हें मिलता है, जब उन्हें सुना और समझा जाता है, जब उन्हें वैलिडेट किया जाता है, जब उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि अ, आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियाँ आप पार कर सकते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में जब वो ग्रो करते हैं, अपने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस सभी ने शेयर किया इस किताब में, तो उनको डॉक्यूमेंट किया है डॉक्टर महिलाओं कोनी के लिए भी खेचुनी। कुछ है क्या? इसमें हर प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चों की कहानी है, सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों के भी जीवन की वो सारे कहानियां हैं जो उन्हें भी समाज में जो फेस करना पड़ता है तो उसके। मतलब ये भारत को देख के किया गया है या फिर विश्व को देख करके? ये स्पेसिफिकली ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, और समाज में अगर जेंडर की बात करें, जैसे आप महिलाओं के बारे में बात करें, तो महिलाओं और पुरुषों के साथ में मतलब इक्वली वो बाधाओं को फेस करते हैं, क्योंकि हम हाईलाइट करते हैं कुछ स्पेसिफिक मुद्दों को जो महिलाओं से जुड़े हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि कई प्रकार से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उनके जो एक्चुअल नीड है उनको समझा जा रहा है। दूर करके। ठीक है। मेरा नाम विशाल तलरेजा है। मैं ड्रीम ड्रीम का को-फाउंडर हूँ। ड्रीम ड्रीम 24 साल पुरानी संस्था है जो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। ड्रीम ड्रीम गवर्नमेंट स्कूल बच्चों के साथ, जो बच्चे संस्थाओं में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो जिनका घर नहीं है, उन बच्चों के साथ काम करती है। करीब 6 साल से 21 साल के बच्चों के साथ काम करती है। बेंगलोर में हम बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, जहाँ हम स्पोर्ट्स, आर्ट्स और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ करके बच्चों के जीवन कौशल्य पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ बच्चे हमारे संस्था में आकर करीबन 7 से 9 साल तक डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं फिर उनको हम लाइफ स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी दिलाते हैं, जैसे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो या कोई जॉब बेस्ड स्किल्स हो, और उनको फिर जॉब प्लेसमेंट में या अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने में भी सपोर्ट करते हैं। अगर उनको आगे पढ़ाई करनी है तो उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो बेंगलोर में हम ये बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, हमारी स्टाफ। यहाँ से जो हमको सीख मिलती है, ये सीख से हम अभी एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट्स के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। 6 गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, तेलंगाना और कर्नाटका में। और इन 6 गवर्नमेंट्स में हम करिकुलम पे काम करते हैं, कोई नया करिकुलम लेके आना। झारखंड में किस तरह से काम हो रहा है? हाँ, झारखंड में हम एक नया करिकुलम लेके आए हैं, हर्ष जौहर करिकुलम, जो बच्चों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में और केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में हम कर रहे हैं। इसमें हम टीचर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, नया करिकुलम भी लेके आ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते एक नया अप्रोच भी लेके आएंगे एजुकेशन में। इसके अलावा एक 3-4 संस्थाएं मिलकर एक प्रोजेक्ट संपूर्णा पर काम कर रहे हैं झारखंड में, जहां बच्चों को कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, जिससे बच्चों में सिर्फ नॉलेज का फोकस नहीं हो, एकेडमिक्स का फोकस नहीं हो, उनमें लाइफ स्किल्स भी हाई, सोशल इमोशनल लर्निंग भी हाई, और उनकी पूर्ति से डेवलपमेंट हो।
और इससे जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर निकलेंगे उनमें वो जीवन कौशल्य हो जिनसे वो लाइफ के डिसीजंस ले सके और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। डॉक्टर कोनी केचम से कैसे मुलाकात हुई? डॉक्टर कौनी से हमारी मुलाकात 2013 में हुई थी। वो एक इंटरनेशनल रिसर्च कर रहे थे कि कौन से देशों में टीचर ट्रेनिंग के द्वारा एजुकेशन में इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इंडिया में भी वो रिसर्च कर रहे थे और इंडिया में उन्होंने ड्रीम पर रिसर्च किया। तो वो रिसर्च के माध्यम से हमसे मिलने आए थे और तब हमारी जान पहचान हुई। और फिर 2019 में हमने उनको इनवाइट किया कि आप आकर हमारा प्रोग्राम अभी देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हुए हैं। और जब वो आए तो तब उनको ये प्रेरणा मिली कि हम बच्चों के बारे में एक ऐसा बुक लिखें और उसके माध्यम से जो ड्रीम का अप्रोच है, जीवन कौशल्य का जो अप्रोच है, उसके बारे में हम एक बुक लिखें।